कर्णे विष्णुयाः सत्यं पश्येमाहुर्यजत्राः वैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Hello everybody. Today we are very fortunate to have a webinar by Jajuji, a great Gandhian from Wardha. From Bihar, Basant. He told me about Jajuji's work. When I contacted him on phone, in the very first meeting on phone, he immediately agreed without making any fuss. And today we'll have his presentation on rural, what you can call assurance. He is working for the rural poor people and working particularly in the field of how to make them insured for their health insurance. But he rightly calls it, instead of calling it the insurance, he called it assurance, more than insurance. So we'll be talking on that. His formal introduction will be done by our other common friend, Dr. Vinayak Deshmukh from Akola. Vinayak Deshmukh himself is also a very, known doctor in big hospital he has in Akola. His entire family is doctor, both the sons and daughter-in-laws. They have done the post-graduation in different fields. And luckily Vinayak Deshmukh knows Jajuji. They are both college mates as well as Wardha mates. So I thought I will request Vinayak Deshmukh to introduce Jajuji. But before that, as usual, I will request Dr. Madan Kumar to tell the audience about our Vivekananda Kendra Nardep and our Vasudha exhibition. Afterwards, Vinayak Deshmukh will introduce Jajuji formally. Over to Dr. Madan Kumar. Thank you, Vasudevji. Good morning to one and all. Everybody would be knowing about Vivekananda Kendra's formation in 1972, which is a spiritual oriented service mission by our Maniniya Eknath Ranade, and whose focus was man making and nation building through education, rural development, cultural activities. So in sequel to that, Vivekananda Kendra Nardep was formed with the perspective of living in tune with nature. So basically our Nardep aims on the sustainable development by promoting eco-friendly technologies. Basically we are concentrating on natural resource conservation and traditional health systems and community-based livelihoods. So the more the approach has been very practical and emphasizing on the low-cost replicable solution which enables the rural communities to live in harmony with nature. The recent new addition is the Vasudha, which is a digital exhibition and an experiential initiative to promote a sustainable living. Vasudha, everybody knows, meaning Mother Earth, combines educational content, interactive media, and actionable guidance to help individuals for enabling them to understand environmental challenges and adopt eco-friendly practices in daily life. Beyond awareness, Vasudha pushes behavioral change through form of a newsletters and keeping in touch with the people of the interested practitioners, making them doing podcasts on the interesting subjects, which aids the sustainable living. So more in turn concentrates on conscious consumption, decluttering, and adoption of green products. So it positions sustainability not as an activism, but as a lifestyle choice, making it accessible and practical for individuals and communities aiming for a greener future. Besides this, we also have a Gramodia Park, which houses many of our Vivekananda Kendra Nardep's initiatives. So we of late have come in a better way to reach more people. In fact, in particular, the students and other people who are in other walks of life, to certificate courses also. This is as of Vivekananda Kendra Nardep's works as such. Thank you for the opportunity. It is a great pleasure to introduce a noble person like Ullah Jaju. I am happy to say that he is my schoolmate. We were together in the school in the medical college. He passed his MD
in general medicine from government medical college. Of course, a person like him was throughout a meritorious student. There were never ups and downs in his career. When we finished our post graduation, we together joined Mahatma Gandhi Institute Medical College, Sevagram. There we joined as a lecturer. There also Ullas used to move around in villages for the social welfare of the people in the villages. His aims and objective was how to create jobs for the people and how to improve their income and how to stabilize them socially. He was moving around in the around the villages. It was not part of his duty, but it was his own enthusiasm and desire to work for the poor and downtrodden people. So he was moving around. His family is the same. They are the most noble people of Akola. They are known famous Gandhian people. His father is Narayan Dasji Jaju and his grandfather. They are famous Gandhian peoples and they are very noble people. They are associated with many social organizations and Dr. Ullas and his younger brother Suhas, who is a surgeon, they together they compose a competition. They organize a competition in question and answer session and choose a person who has best social outlook and who is working for poor and downtrodden people, and they give them prizes. Soon, Dr. Ullah Jaju became professor of medicine in Sevagram Medical College. He became director from there. Dr. Ullas got married with a wife who is a very good advocate, and he is blessed with a son and daughter. Both of them are doctors. This is what I know about Ullas, a most pious person I have ever seen. I am very lucky to be associated with you. Thank you very much, sir. हमारी भावना ऐसी कि हम जब लोगों के बीच में काम करने जाते हैं और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जाते हैं तो वो केवल सेवा बन के रह जाती है। वो केवल सेवा नहीं होनी चाहिए, उसके माध्यम से लोक संगठन खड़े होने चाहिए। ये भूमिका हमारी पहले से थी, ताकि हम समाज को केवल पंगु नहीं बनाना चाहते, हम समाज को एम्पावर भी करना चाहते हैं, जिस भी माध्यम से हम उनके पास जाएं। तो संगठन का क्षेत्र कौन सा हो, जहां समाज समता मूलक हो, ताकि बंधुता और स्वतंत्रता के बीच संवर्धन को वे चालना दे सकें। ये तीन, समता, बंधुता और स्वातंत्र, ये आदर्श समाज के हमारे मूल्य हैं। तो हमारे रचनात्मक कार्य कहीं ना कहीं इस तरह के समाज के बांधने के लिए उपयोगी पड़ना चाहिए। ये उसके पीछे की भूमिका है। अब ये जो समता मूलक समाज है, ये हम आज श्रमजीवी समाज में ही देखते हैं। श्रम पर करने वाले आदमी के बीच में एक रिश्ता होता है, दे आर नेवर इक्वल्स, इसीलिए वहाँ पर सर्टिफिकेशन नहीं होता। और ये श्रमजीवी तो आज हमारे देहात में ही है, इसी और देहात हमारे समाज की इकाई है, जहाँ परस्परावलंबन है, उसके सिवा वे जी नहीं सकते। इसीलिए देहात हमारा प्रयोग क्षेत्र बना। देहात प्रेम से बने हैं, लोभ से शहर बने हैं। तो जहाँ प्रेम है वहाँ ये समता मूलकता आदर्श तक पहुँचाएगी, ये मानकर ये प्रयोग हमने शहर में करने का नहीं सोचा। तो समाज परिवर्तन के प्रयोग की गांव ही ये भूमि होनी चाहिए, और ये प्रयोग का क्षेत्र देहात होना चाहिए। इस निर्णय तक हम पहुँचे। प्रयोग के लिए, सेवा के लिए क्षेत्र छोटा चाहिए, चिंतन के लिए व्यापक चाहिए। अतः प्रयोग ग्राम स्वराज्य का, चिंतन जय जगत का। समाज जीवन में चंचू प्रवेश का माध्यम भी चाहिए। हमारा माध्यम स्वास्थ्य सेवा रहा,
सेवा व्यक्ति की और भक्ति समाज की होनी चाहिए। सगुण सेवा यानी व्यक्ति की सेवा निर्गुण की परिधि में होनी चाहिए, मतलब समाज की परिधि में होनी चाहिए। अंत्योदय तो करना ही है, पर अंत्योदय वो भी सर्वोदय की परिधि में होना चाहिए। मतलब यह कि हमारी भूमिका ये वर्ग समन्वय की होगी, वर्ग संघर्ष की नहीं। ग्राम संगठन हमारा ध्रुव तारा होगा। पहला कदम हमने उठाया चंचू प्रवेश के लिए, जो स्वास्थ्य बीमा योजना कहलाया। वो ज्वारी के रूप में हम उनका कंट्रीब्यूशन लेते थे, इसीलिए वो ज्वारी स्वास्थ्य बीमा योजना कहलाई। वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, सेल्फ रिलायंट स्वास्थ्य सेवा नहीं थी, वो हेल्थ एश्योरेंस था। गरीब आदमी हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे जी नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं होता। तो हम हेल्थ एश्योरेंस का हमने जिम्मेदारी उठाई इस योजना के माध्यम से। पर हमने उसमें गांव को इन्वॉल्व किया। गांव को इन्वॉल्व करने के अलग अलग स्तर होते हैं। एक होता है कम्युनिटी कंप्लायंस, आप देते हैं समाज पाता है। दूसरा होता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, समाज भी उसमें सहभागी होता है। Actually, इसीलिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। और हमने ये माना कि इस बारे में योजना बनाने में जो निर्णय होंगे ये ऑब्लिगेटरीली ग्राम सभा में ही होंगे, कुछ लोगों के बीच बैठ के नहीं होंगे। हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी? इट वॉज गो टू द पीपल, नो देम, लिव विद देम, लव देम, लर्न फ्रॉम देम, प्लान विद देम, वर्कआउट विद देम एंड बिल्ड अपॉन वॉट एवर दे हैव। ये लाओ त्से का मंत्र है जो चीनी दार्शनिक हो गया, जिसके आधार पर हमने समाज जीवन, ग्रामीण समाज जीवन में प्रवेश किया। हमने ये आग्रह रखा कि ये समाज सहयोगी भूमिका में होगा। वी न्यू कि चैरिटी करप्ट्स, इसीलिए ये स्वास्थ्य सेवा उन्हें जो दी जाएगी ये मुफ्त नहीं होगी, कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होगा ताकि उस पर वह अधिकार जता सकें। तो फिर हमने कंट्रीब्यूशन उनसे इकट्ठा किया। कितना करेंगे कंट्रीब्यूशन? उनको कैश में देने की जगह ज्वार के रूप में, sorghum में देने का इजी था कारण खेती में वो पैदा करते थे। उन्होंने ज्वारी के रूप में कंट्रीब्यूशन लिया। पर वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, फ्रॉम देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी बट टू देम सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो गरीब आदमी कम कंट्रीब्यूट करेगा और सेवा मात्र उसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसके हिसाब से मिलेगी। इस प्रिंसिपल को हमने माना, उस तरह से वो लोगों से बात की और लोगों के दिमाग में, चरित्र में, समाज की संस्कृति में वह पहले ही था। गांव का कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वे कंट्रीब्यूट करते हैं और सारे उसकी सेवा पाते हैं। तो हमने जवारी के हिसाब से इकट्ठा किया। मजदूर परिवार से कम उस समय शुरुआत में, दिस इज 1982, 4 पायली जवारी देंगे ऐसा ग्राम सभा में तय हुआ। मजदूर परिवार एक पायली में करीब 1.25 किलो जवार आती थी, मतलब करीब 5 किलो जवार में साल भर के लिए वो पूरा परिवार, मजदूर परिवार, स्वास्थ्य सेवाएं पाएगा। जमीन वाला कितना देगा? 1 एकड़ के पीछे 2 पायली जवारी ज़्यादा देगा। कोई जोड़ धंधा हो तो कितना देगा? और 4 पायली ज़्यादा देगा। किसी के घर में कोई नौकरी होगा तो क्या देगा? तो उस गांव में जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पे मजदूर रखा जाता है उसका जो पगार होगा उस अनुपात में 4 पायली का गणित पकड़कर उस तुलना में ज़्यादा देगा। मतलब जो थोड़ा सधन था उसने ज़्यादा जवारी दी, जो गरीब था उसने कम से कम दी, पर सेवाएं सबको सरीखे मिली। ये जो इकट्ठी हुई जवारी ये हमने नहीं ली, स्वास्थ्य सेवकों ने नहीं लिए।
ये गांव में एक सामूहिक कोष बना, उस सामूहिक कोष में रखी गई, और उस सामूहिक कोष में से गांव में जो काम स्वास्थ्य सेवा के होते हैं उसके खर्चे उसी में से निकाले गए। क्या क्या खर्चे निकाले गए उसमें से? हमने गांव के लिए एक स्वास्थ्य वर्कर ढूंढा, वॉलेंट्री काम करने वाला, सब लोगों को मंजूर होने वाला, लोगों के प्रति सेवा की दृष्टि रखने वाला, गांव के पार्टी पॉलिटिक्स में न घुसने वाला। ये भी लोगों के साथ बैठ के तय हुआ, और उसको कुछ ना कुछ जवारी के रूप में कंट्रीब्यूशन दें। ये कोई पगार नहीं था, एक तरह से एक रिकॉग्निशन था। वो ग्राम सभा में तय किया है। हमने जितनी क्विंटल जवारी इस तरह से कार्ड के लिए जमा की थी, इंश्योरेंस कार्ड के लिए, उसमें से कितनी जवारी देनी है लोगों के साथ बैठ के तय हुआ। उतनी जवारी के रूप में उसे साल के अंत में दिया जाता, उसकी मीटिंग होती, उसके काम का जायज़ा लिया जाता, और इसीलिए गांव वालों ने अपने को रेम्यूनरेशन दिया है, इसीलिए उनकी सेवा पूरे मन से करनी चाहिए। ये बंधन भी उस सेवक पे होता। इसी ग्राम कोष से गांव में रखी हुई दवाइयों का खर्चा निकलता है। इसी ग्राम कोष में से गांव में उनकी एएनसी पीएनसी केयर के लिए और बाकी इसके लिए व्हीकल आती थी, मैन पावर आता था, उसके पेट्रोल का खर्चा निकलता था। उनका पगार उसमें से नहीं निकलता था। स्वास्थ्य रक्षक को कोई पगार के रूप में नहीं मिलता था। ग्राम सभा की नित्य बैठकें हुई, नियोजन में उनकी सहभागिता रही, कोई भी निर्णय परस्पर लिए नहीं गए। कुछ समय ग्राम सभा लेनी पड़ी जब कुछ प्रश्न खड़े हुए, जैसे गांव में हमने पहले ओपीडी चलाई, दवाइयाँ दी, कहा कि उसकी जो कॉस्ट है वो आप देंगे। उस समय पास में वो माँ के पास में पैसा नहीं होता, अगली बार ला के दूंगी कहती है। अगला समय आया, अगले हफ्ते में जब ओपीडी के लिए गए तो आई नहीं, वो पैसा वापस आया नहीं। हमने जितना ग्राम कोष खड़ा किया था वो धीरे धीरे उसी में खर्च हो गया। फिर मीटिंग की लोगों की, अरे भाई यदि उसकी दवाई का जो मिनिमम खर्चा है वो भी नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? तो निकाली जानकारी किसने किसने नहीं दिया। और हमको आश्चर्य हुआ, गांव का जो सधन वर्ग का व्यक्ति था उसी ने पैसे नहीं दिए थे, गरीब ने तो दिए थे। अब सबके सामने नाम पड़े गए, तो गांव वालों ने सब मिलकर निर्णय किया कि अगली बार से यदि उसका पैसा वो नहीं देंगे तो उनको दवाई न दी जाए। वापस शुरू हुआ। अब अनुभव आया कि गरीब के घर का बच्चा घर में बीमार है, पर वहाँ पर ओपीडी में लाता नहीं है, गांव में चलती थी ओपीडी। घर घर जाके पूछा तो जानकारी लगी कि गरीब है, न्यूमोनिया हुआ है, एंटीबायोटिक लगेंगे, पैसे का खर्चा होगा, पैसा माँ के पास में है नहीं, नहीं आती का नियम हुआ ग्राम सभा का कि पैसा तो जितना मिनिमम खर्चा है वो देना ही होगा। तो हम सोचने लगे कि हम जाते किसके लिए हैं? गरीब आदमी तक नहीं पहुंच सके और वो यदि पैसा नहीं दे सके तो फिर हमारा पर्पज सर्व हुआ क्या? और ये परिस्थिति थी जब हमने इस गांव में चलने वाले स्वास्थ्य क्लिनिक को सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज के साथ में जोड़ा। डॉक्टर सुशीला नायर वहाँ की डायरेक्टर थी, उन्होंने उस कॉलेज को शुरू किया था। वो एक रूरल मेडिकल कॉलेज है जिसका उद्देश्य गरीब आदमी तक स्वास्थ्य सेवा ले जाना और गरीब गाँव के उपयुक्त डॉक्टर्स तैयार करना, उस तरह का एप्टीट्यूड खराब करना, यह था। उन्होंने इसका सहर्ष स्वीकार किया और फिर बीमार जिसको दवाखाने के एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है उनको मुफ्त में दवाखाने की सेवाएं मिलें, इसका एश्योरेंस मिला। कारण यदि वो मुफ्त नहीं देंगे तो गरीब आदमी आ ही नहीं सकता है। तो गरीबों को यदि स्वास्थ्य सेवा मिलनी है तो इमरजेंसी में कम से कम जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ पे मुफ्त सेवाएं देनी चाहिए, इस निर्णय पर है। ऐसी ही ज़रूरत ग्राम सभा की बैठक की हुई कि जब लोग एडमिट हुए तो कई बार एडमिट हो गए, कह रहे हैं कि डायरिया हो गया, बहुत तकलीफ़ हो रही है। एडमिट किया, फिर ध्यान में आया इसको डायरिया वगैरह तो कुछ है नहीं।
फिर क्यों आगे उन्होंने क्या करना, उसको कहा था कि एडमिट करेंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं पड़ेगा, तो फिर कारण निकाला तो उसको कोर्ट में जाना था, कोर्ट में जाना नहीं था, इसीलिए उसको बताना था कि मैं एडमिट हो गया हूँ और छुट्टी पाना चाहता था। मतलब मुफ्त में मिलने वाली सेवाओं का दुरुपयोग करने की वृत्ति भी थी। गांव के बाद सामने प्रश्न गया, ग्राम सभा में तय हुआ, यदि ऐसा करेंगे तो ये योजना बंद हो जाएगी, कारण इसके लिए जो बाकी का खर्चा होता है ये मेडिकल कॉलेज सेवाग्राम करता है। यदि आप ऐसा झूठा करेंगे तो ये सेवाएं नहीं मिलेंगी। फिर वहाँ निर्णय हुआ कि ऐसा जो करेगा उसको दंड पड़ेगा, उससे पूरा हॉस्पिटल का बिल देना चाहिए, ऊपर से दंड की रकम जमा करनी चाहिए, नहीं तो उसको बीमा योजना से अलग कर देंगे। गांव का निर्णय था, लोगों को पैसा देना पड़ा, और फिर इसके बाद में मिसयूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज करने वाले कोई नहीं निकले। हमने क्या पाया, एक गांव से काम शुरू हुआ, उसमें 100% लोगों ने कंट्रीब्यूशन अपना दिया। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको जो सर्विसेज हमने कमिट की थी दवाखाने में आने के बाद में, वे यदि उनको नहीं मिले तो वे कंप्लेन करते थे। तो देयर वॉज राइट टू डिमांड, भले ही उन्होंने 4 पायली जवारी दी हो, दोज सर्विसेज विच वर प्रॉमिस्ड टू देम। इसीलिए वो भिखमंगे नहीं थे, वो हाथ पसार के नहीं बैठे थे, उन्होंने चैरिटी नहीं ली थी, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ न कुछ दिया था, और आपने शब्द दिया था कि वो सेवाएं आप देंगे, तो फिर उनको वो सेवाएं बराबर देने के लिए हम पर अंकुश भी आया। हम गरीब आदमी तक पहुंच सके, गरीब से गरीब आदमी तक। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है गरीब में से जो दवाई चाहता हो, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, और बिना दवाई के और बिना हॉस्पिटलाइजेशन के वो मृत्यु उसका हो गया हो। जो घर ही शांति में मृत्यु पालना चाहते हैं, उनके प्रति हम उनको जाके विजिट भी देंगे, पर बिना दवाई के और बिना सेवा के उसको मृत्यु के सामने जाना पड़े, ऐसा मौका नहीं आया। तो एक तरह की ऐसी स्कीम बनी, इंश्योरेंस स्कीम की, मैं एश्योरेंस बोल रहा हूँ कारण उसमें से पूरा खर्चा पैसा निकलता नहीं है, जो अवेलेबल थी, एक्सेप्टेबल थी, अफोर्डेबल थी। कारण जब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता तो वो टोटली फ्री होती। केवल क्यूरेटिव मेडिसिन ही सब नहीं होता, तो हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात भी सोची। तो उसके लिए इम्यूनाइजेशन एक आधार था हमारे पास। हमने क्लस्टर इम्यूनाइजेशन किया, तो डॉक्टर जेकब जॉन ने सजेस्ट किया था वेलोर से। पूरे गांव में जितने लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, उनको सबको एक साथ दिया जाता। वो पोलियो के लिए दिया, टिटानस के लिए दिया, वूपिंग कॉफ के लिए दिया, डिफ्थीरिया के लिए दिया, टिटानस के लिए दिया, जो और मीजल्स के लिए भी दिया। ये सारे वैक्सीन प्रिवेंटेबल इलनेसेस थे। 100% रिकवरी हुई, दिया गया, और इन गांव में मीजल्स के भी एपिडेमिक ख़त्म हो गए हैं। मीजल्स सबसे ज़्यादा कॉन्टेजियस डिसीज़ है, वे भी ख़त्म हो गए। तो ये साइंस के कमाल था कि इन बीमारियों के बारे में हम पूरी तरह से विजय पा सके गांव में। परंतु गांव में बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जो अस्वच्छता के कारण भी थी, इन्फेक्टिव इलनेसेस थे, और विशेषतः माल न्यूट्रिशन के कारण थी, भूख के कारण थी। बच्चे माल न्यूट्रिशन के थे, और उनमें हम ये सफलता नहीं पा सकते थे। हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े तो भी कई बार बहुत लेट होता था। तो फिर हम गए गरीब के लिए, और हम ऐसी बीमारियां जो कि डेंजरस हैं, जिससे मॉर्टेलिटी बढ़ती हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर नहीं पाए। तो और यदि हमको गांव वालों में इंटरेस्ट है, उनके संगठन में इंटरेस्ट है, समाज परिवर्तन में इंटरेस्ट है, खुशहाली में उनके इंटरेस्ट है, तो फिर कहीं ना कहीं हमने उनकी अस्वच्छता के प्रश्न को भी छूना होगा, कम्युनिकेबल डिसीजेस को टालने के लिए।
तो बाय 1985 पूरे गांव में हमने हर घर के सामने एक लैट्रिन बना, मुफ्त में नहीं था। रास्ते पर वे क्यों संडास के लिए जाते हैं, इसका अभ्यास करके कम से कम पानी में काम होने वाला ऐसा संडास बनाया, जिसका एक मॉडल बना, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो गांव वालों को एक्सेप्टेबल हुआ, हर घर के सामने बना, मुफ्त में नहीं बना, कुछ न कुछ 20-30%, 40%, 50% उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनकी तरफ से कंट्रीब्यूट होता, बाकी गांव के योजनाओं में से आता या शासकीय योजना में से आता, और हर घर के सामने बना, स्वच्छता रहने वाला बना। तो एक ये बहुत बड़ा काम 1985 में हुआ, हर घर, और पूरे गांव का हुआ। और पूरे गांव की उस योजना का उद्घाटन करने के लिए राज्यपाल अलेक्जेंडर साहब थे उस समय, राज्यपाल महाराष्ट्र के उस गांव में आए, और ऐसे पूरे गांव में संडास बनाने का कार्यक्रम लिए गए, अस्वच्छता के प्रश्न को हाथ डालने के लिए। पर माल न्यूट्रिशन को, गरीबी उसका सबसे बड़ा अभिशाप है गरीब आदमी का, ये हम समझे थे, और उसके लिए हमारे पास में कोई नुस्खा नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, न्यूट्रिशन ही तरीका था। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दें तो वो बढ़ जाता घर में, पूरा पड़ता नहीं है, वो सप्लीमेंट नहीं रहता, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसीलिए माल न्यूट्रिशन को बहुत कर नहीं सकता जब तक इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स हम हाथ में नहीं लेंगे और गांव ही अपना खाने का खर्चा निकाल सके। खेती जब तक सक्षम नहीं होगी, निर्वाहक्षम नहीं होगी, तब तक ये प्रश्न छूटेगा नहीं। केवल ये अलग अलग तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चला के वापस भिखमंगा बना के रास्ता नहीं निकलना, इस निर्णय तक हम आए। तो वी मस्ट ट्रांसेंड बियॉन्ड हेल्थ नाउ if we want well-being of the people, and therefore we got into income generation programs. There were two programs that we had in mind उस समय। एक था लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनाई, नदी के किनारे गांव हैं, वहाँ से पानी उठाया, ऊंची जगह पर टाकी में ले गए, वहाँ से उतार से गांव के कोने के खेती तक पाइप से पानी गया, इरिगेशन की व्यवस्था हुई, गांव की सोसाइटी बनी, सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन बना, मैं इसके बारे में आगे आऊँगा, और इरिगेशन की व्यवस्था हुई, बैंक के लोन से खड़ा हुआ, और फिर वो अच्छे से सोसाइटी चली, और वो कल जाके बैंक के लोन से भरी भी हुई। दूसरा जो प्रोग्राम हमने इनकम जनरेशन उठाया वो डेयरी डेवलपमेंट का था, पूरे गांव की डेयरी, पूरे गांव की लिफ्टिंग। कारण क्यों? कारण हमको तो पूरे गांव का विचार करके संगठन करना था, ये केवल व्यक्ति या परिवार का सवाल नहीं था। तो हमने पूरे गांव की डेयरी खड़ी हुई, मैं उसके सारे बैकग्राउंड में नहीं जाता हूँ, किस तरह से खड़ी हुई, क्या प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है, हर समय लोगों के साथ बैठकर बात करके तय हुआ। पर इतना आपको बताऊं कि वो डेयरी खड़ी हुई, मुफ्त तो किसी को दिया नहीं गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना लाजिमी था। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन होते हैं, हमको इलेक्शन नहीं चाहिए थे कारण वो तोड़ता है। इसीलिए फिर सोच समझकर हमने उसके कॉन्स्टिट्यूशन में दो परिवर्तन किए। एक परिवर्तन किया कि इस सोसाइटी में जो निर्णय होंगे वो कम से कम 75% आम सभा के मेंबर्स की मंजूरी के सिवा नहीं हो सकेंगे, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से होंगे। और जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से होंगे तो 25% व्यक्ति विरोध करते नहीं हैं। इसीलिए हम इलेक्शन भी टाल सके। सबकी सम्मति लेकर 11 लोगों की हम लोग कार्यकारिणी चुनते हैं, और उसमें जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिले वो अध्यक्ष बनेगा, जो बाद दूसरा बनेगा वो कोषाध्यक्ष बनेगा, तीसरा बनेगा वो सेक्रेटरी बनेगा, चौथा बनेगा वो यहाँ के फेडरेशन का मेंबर होगा। इलेक्शन होने की बात ही नहीं आई। सब लोगों ने मंजूर किया कि इस तरह से जिनकी ज़्यादा जो मेरिट लगेगा 11 लोगों का उसको मंजूरी देंगे। तो पार्टीबाजी नहीं,
गांव में पूरी सोसाइटी इकट्ठा रही और पूरा गांव सोसाइटी में आया था, इसलिए पूरा गांव इकट्ठा रहा। और दूसरा ये कि हम ग्राम कोष खड़ा करेंगे, हम सोसाइटी का बीच का कोष खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा करेंगे? कारण इनकम जनरेशन प्रोग्राम है, इसी इनकम में से बनाएंगे और उसके माध्यम से किसी भी ज़रूरत के लिए उनको सदस्यों को लोन मिलेगा, ब्याज उसका तय होगा और समय के भीतर यदि लौटा दिया गया पैसा तो ब्याज माफ हो जाएगा, तो इंटरेस्ट फ्री लोन हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी बाकी लोग लेंगे, इसीलिए ये पैसा लेकर डूबा नहीं, डिफॉल्ट कोई हुआ नहीं, इनकी ताकत बढ़ी, उनको किसी भी ज़रूरत के लिए पैसा मिला, केवल गाय के दूध के काम के लिए मिला ऐसा नहीं। और ये दूध फेडरेशन को गया और फेडरेशन ने वर्धा में बेचा। और ये एक गोरस भंडार नाम की फेडरेशन था जो गांधी के समय से बना था, वो गो संवर्धन का ही काम करता था, इसीलिए गो संवर्धन की ही सोसाइटी थी। इसके माध्यम से पारदर्शिता आई, पैसे का व्यवहार ठीक से हुआ, नियम वैसे बने, इलेक्शन नहीं हुए, झगड़े नहीं हो पाए और एक आदर्श सोसाइटी बनी जिसको जिला में मान्यता मिली। विकास का एक उत्कृष्ट माध्यम हम खड़ा कर सके, पैसा आया, इज्जत मिली, हमको लगा जो संगठन हम करना चाहते थे वो करने में सफल हो गए। पर पैसा आया, उसके साथ में सुबत्ता आई और पैसे के साथ में फिर कल लड़ाई झगड़े भी आए, जुआ भी आया, पुलिस भी आया, कोर्ट कचहरी भी आया, शराब भी आई, सट्टा लगाना भी आया, स्पर्धा भी आई, यहाँ तक कि खून भी हुआ। हमने कैसा संगठन खड़ा किया? इसे समाज संगठन कहेंगे क्या? 100% लोग आए थे उसके साथ, पर हम कहीं तो भी चूक गए। सोचने पर मालूम पड़ा सब लोग इकट्ठा क्यों आए। कारण सब लोग इकट्ठा आए और हमारी मदद उनको मिल रही थी उनके नियोजन में, इसीलिए हमारा आग्रह था सब आएंगे तो ये मदद करेंगे, इसीलिए उनको इकट्ठा आए। उनको समझता था सामूहिकता में ही हम पैसा पा सकेंगे, इंडिविजुअली तो हम झगड़ेंगे, नहीं आएगा। इस सोसाइटी का मैं अध्यक्ष था 40 साल तक। मेरे में लोगों की श्रद्धा थी, इसलिए जो शब्द कहा जाता था वो माना जाता था। अतः इस सोसाइटी के कारोबार को दिशा दर्शन देने वाला एक नीतिवान व्यक्ति चाहिए, तभी ये सोसाइटी में जहाँ पैसा आता है कल जाके नीयत बिगड़ती नहीं है और पारदर्शिता रह सकती है। इस निर्णय तक हम आए। पर पैसा आया तो चरित्र हनन हुआ। तो ये स्यूडो संगठन था, स्वार्थ के लिए इकट्ठा भीड़ थी और उन्मत्त होने वाली भीड़ थी। ये समाज नहीं बना था, ये आदर्श संगठन नहीं बना था। तो हम सच्चरित्र संगठन की खोज में हम स्वाध्याय परिवार का काम देखने गुजरात में कुछ मित्र मिलके गए, 10-15 मित्र। वहां पे हजारों की संख्या में लोग कैसे आते हैं, कोई भी पगार नहीं पाता है, सेवा में भी रहते हैं, लोग बदले हैं, आदमी बदला है, शराब पीने वाले मछुआरों ने शराब छोड़ दी है, चोरी करने वाले समाज ने वो छोड़ दिया है, पूरा गांव प्रार्थना के लिए इकट्ठा आता है, पूरा गांव मिलके खेती करता है, सामूहिक खेती होती है, सेवा यंत्र विद्यालय चलता है, स्कूलें चलती हैं, भक्ति फेरे के लिए शहरों के लोग आते हैं, 2 दिन वहाँ अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अपना ही खाना पीना लेके आते हैं, लोगों पे बोझ नहीं होता, पर्कुलेशन टैंक बनते हैं, वाटरशेड के काम बने हैं, सब श्रमदान करते हैं। इंसान बदलता हुआ नजर आया। और फिर उसके जब बारकाई में हम गए तो हमने देखा कि वहां पर गुरु की अपनी एक भूमिका है। उसने इन्हें बताया, उसने इनकी श्रद्धा को छुआ।
और जब श्रद्धा को छुआ सो धर्म अर्थ मोक्ष काम और मोक्ष, ये जो चार परमार्थ हैं उसमें से मोक्ष के लिए उन्हें प्रेरित किया, और वो हर इंसान के मन में है। तो मोक्ष की संकल्पना को लेके सच्चरित्र समर्थ लोगों को श्रद्धा के आधार पर उस गुरु ने इकट्ठा किया और मार्गदर्शन किया। हमको इसके कारण एक चरित्रवान मानव समूह का दर्शन हुआ। सूत्र ध्यान में आया, श्रद्धा को छुओ तो संगठन योग मार्ग पर जाएगा। पर उसकी मर्यादा भी ध्यान में आई। इस संगठन में भक्ति सगुण की थी, मूर्ति पूजा को मानने वाले लोग थे, तो पंथ बना था। संकुचित सगुण भक्ति भी थी, कारण उनके दैवत सारे हिंदू धर्म के थे, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के नहीं थे, या बुद्ध धर्म के भी नहीं थे। परिणाम ये हुआ कि जिस समाज में ये बाकी धर्म के लोग भी हैं वे इसमें शामिल नहीं हुए, पर केवल ये सारा समूह जो हिंदू धर्म का था वो इकट्ठा आया अच्छे काम के लिए, पर समाज इकट्ठा नहीं हुआ। वहां न कहीं दो भाग तो पड़े ही। तो ये भी ध्यान में आया कि सगुण भक्ति यदि संकुचित हो जाए तो संप्रदाय बनाती है। और यह भी ध्यान में आया कि आज धर्म नहीं बना है, धर्म तो वो है जो धारण किया जाता है। तो धारण जीवन में नहीं हो सबका, तो ईश्वरीय संकल्पना ऐसी चाहिए जो हमारी सगुण भक्ति से परे जाए, ऊपर जाए। अब सगुण भक्ति का मेरे जिंदगी में रोल है, पर मैं जब राम की पूजा करता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं सत्य की आराधना करूंगा तो राम मिलेंगे। मैं कृष्ण की आराधना करना चाहूं तो मुझे अनासक्ति जीवन में लानी होगी। यदि मैं बुद्ध की आराधना करता हूं तो करुणा मेरे जीवन में सफल होनी होगी। यदि मैं मोहम्मद की आराधना करता हूं तो शांति का मैं पथिक होना होऊंगा। यदि मैं यीशु की करता हूं तो प्रेम मेरे जीवन में उतरना होगा। और यदि ये नहीं उतरता है तो मैं मूर्ति पूजा करके कुछ नहीं करता हूं, धर्म मेरे जीवन में नहीं उतरता। संप्रदाय बनते और ये संप्रदाय झगड़ते। तो फिर हमारी ईश्वरीय संकल्पना सगुण से ऊपर उठनी चाहिए, सगुण साकार से उठकर सगुण निराकार तक जानी चाहिए। और सगुण निराकार ईश्वर यानी समाज। मैं समाज के बिना रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं समाज को ईश्वर मानूंगा। सगुण ईश्वर मेरे लिए जरूरी है, मेरे जीवन में रहेगा, मेरे परिवार में रहेगा। पर परिवार के बाहर चौरस्ते पे सगुण नहीं आएगा, वो समाज ही ईश्वर बनेगा। समाज में जितने धर्मी होंगे वे अपने अपने जीवन में अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, कारण धर्म कुछ ना कुछ अच्छा बताता है हमको, उस मार्ग पे जाएंगे। और जब हम समाज में करेंगे तब इनको बाजू में, इसके अहंकार को बाजू में रखेंगे। और समाज में जब हम इकट्ठा आते हैं तो हमारा मूल्य मैत्री का बनता है। तो मैत्री के मूल्य को नर्चर करेंगे। मैत्री का मूल्य हमारे समाज परिवार में विकसित होता है, गृहस्थाश्रम में। और जब वो चार दीवार छोड़ के समाज तक जाता है तब फिर वो समाज गढ़ता है। इसीलिए हमारी ईश्वरीय संकल्पना का आरोहण होना होगा, उत्क्रांत होनी होगी, और समूह में उत्क्रांत होनी होगी जो समाज को ईश्वर माने। कहीं है ऐसा? दिखा हमको। विदर्भ में तुकडोजी महाराज का बहुत बड़ा स्थान है। तुकडोजी महाराज ने जो भक्ति हमें सिखाई, उन्होंने सगुण भक्ति का आग्रह नहीं किया, उन्होंने सगुण निराकार समाज की भक्ति की बात की। उन्होंने कई संकल्प सुझाए। उनके भजन आज गांव में सबके मुंह पर हैं। उनकी ग्राम गीता बहुत प्रसिद्ध है, छोटे छोटे संकल्पों से भरी हुई। और फिर ऐसे पंथों में, इनकी सामूहिक प्रार्थनाओं में हिंदू तो आता ही है, मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, बौद्ध भी आता है। कारण वे धर्म उनके व्यक्तिगत जीवन में, समाज जीवन में तो टुकड़ों जी ने बताया हुआ पंथ समाज जीवन का।
तो ईश्वरीय संकल्पना यदि हम से ऊपर उठेंगे तो समाज बना पाएंगे, ये हमारे ध्यान में आया। सच्चाई ये है कि अभी हमारे जीवन में, समाज में धर्म बना ही नहीं है। जो बना, व्यक्ति हैं कुछ जो इसके ऊपर गए हैं, जो धर्म समभावी नहीं, सर्वधर्म मम भाव मानने वाले हैं, परंतु समाज में ये प्रवेश नहीं कर पाया। जो बनी है वो आस्था बनी है, श्रद्धा बनी है, और ये श्रद्धा अंधश्रद्धा की ओर जाते हुए भी हमें दिखती है। जब वो संप्रदाय का रूप लेती है, वो भटक जाती है। कारण क्या था? जो कारण हमारे, यही चीज हमारा अनुभव आया जब हम स्वाध्याय परिवार के अनुभव में गए। और कारण क्या था? कारण ये था कि वहां पर ध्येय मोक्ष का था। धर्म अर्थ काम के साथ में मोक्ष जुड़ा था। किसने देखा मोक्ष? अगले जन्म का किसको मालूम? तो मोक्ष नहीं, वह ज्ञान होना चाहिए। यह हमको गांधी विनोबा ने सिखाया, हमारे पुराने ऋषियों ने भी सिखाया। तो जब तक हम ज्ञान मार्गी नहीं बनेंगे, तब तक हमने उठाई हुई आस्था या श्रद्धा ये ठीक रास्ते पर नहीं जाएगी, अंधश्रद्धा की ओर मुड़ने का डर होगा। ये हमारे ध्यान में आया। तो हमने आके हमारे क्षेत्र में देखा कि हमारे कार्य क्षेत्र में टुकड़ो जी महाराज का गुरुदेव सेवा मंडल है, पर वे अपने कर्मकांड में डूब गए। श्रवण भक्ति में ही खत्म, भजन मंडल हो जाता है, काला लेते हैं, श्रवण भक्ति का समाधान पाते हैं। शायद हफ्ते में एक बार का सप्ताह भी करते हैं, स्वच्छता का सप्ताह वगैरह पढ़ लेते हैं ग्राम गीता। अरे पर भजन में जो गुरु जी ने कहा वो हमारे जीवन में उतरा क्या? समूह जीवन में उतरा क्या? नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? हमने आंख मूंद कर केवल श्रवण भक्ति में समाधान मान लिया। ज्ञान मार्ग का आरोहण हुआ ही नहीं। आध्यात्मिकता की दृष्टि जो दिशा दर्शन करती है वह कहीं ना कहीं रुक गई, कारण गुरु अब नजरों से ओझल हो गया। इसलिए गुरु का संगठन को योग्य मार्ग पर ले जाने के लिए जो अनन्य साधारण महत्व है, वो जब तक लंबे अरसे तक नहीं चलता, तब तक समाज आरोहण के मार्ग पे अगला कदम नहीं रहता, ठिठक जाता है एक जगह। ये अनुभव आया। इस गुरु ने गुरुडम नहीं करना चाहिए, ये भी आया। व्यक्ति पूजा पर नहीं जाना चाहिए, ये भी आया। वो ज्ञान मार्गी साधक होगा और ज्ञान मार्गी साधक खड़ा करेगा, इस अनुभव तक आया। ये भी समझें कि संगठन भक्ति मार्ग से ही गुजरेगा। करुणा की प्रेरणा कृति भक्ति को जन्म देगी। साधक वृंद को ज्ञान मार्ग को अहमियत देनी होगी। स्वार्थ से, मोह से, स्पर्धा से, भय से, द्वेष से सहज ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये मानव समूह समाज नहीं कहलाता, ये भीड़ होती है। श्रद्धा में गूंथा, निष्ठा से बंधा, रिश्तों में, मैत्री में रमने वाला समाज होता है। चरित्र आरोहण हुए बिगन समाज बन नहीं सकता। ये सामूहिक साधना है। व्यक्तिगत साधना तो बहुत सरल है। व्यक्तिगत साधना में व्यक्ति पराक्रम से किसी भी ऊंचाई तक पहुंचते हुए हमने देखा है। गांधी को ही देख लीजिए, गांधी ने सारे पाप किए बचपन में, और नोआखली में किस हद तक ऊपर चढ़ गया, कहाँ तक गया आदमी। तो आदमी किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है व्यक्तिगत जीवन में तो हमने देखा है, पर समूह जीवन में ये साधना बहुत सरल नहीं है। जो सामूहिक सत्याग्रह के प्रयोग हुए जो इने गिने हैं, जो नमक का सत्याग्रह था, जो मीट के आगार पर गए थे, या खान अब्दुल गफ्फार खान का जो अफगानिस्तान के उधर का जो था, जिन पे उन पे गोलियां बरसाई गई थी और इन्होंने अपनी छाती सामने करके उसको झेली थी। ये दो उदाहरण छोड़ दें तो मुझे सामूहिक सत्याग्रह के उदाहरण बहुत नजर आते नहीं। तो इस ऊंचाई तक, इस चरित्र आरोहण तक समाज पहुंचना होगा, तब सच्चा संगठन खड़ा होगा। यहां तक हम पहुंचे। अब इस सारे प्रवास में कुछ बोध पाए, वो बोल के मैं समाप्त करूंगा। समाज परिवर्तन में जितना तंत्र जरूरी है उतना मंत्र भी। तंत्र यानी रचना, तंत्र यानी स्ट्रक्चर। हमने
डेयरी डे की कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो तंत्र खड़ा किया था। उसमें आर्थिक पारदर्शिता थी, सारी मदद मिलती थी, इलेक्शन होता नहीं था। एक आदर्श तंत्र हमको खड़ा करना पड़ता है, परिस्थिति बदलनी पड़ती है। यदि गांव का विचार करें तो ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा की ओर जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत इलेक्शन से आने वाली बॉडी है, पॉलिटिक्स उस पर घुसने वाला है, वो समाज को तोड़ने वाली है। इलेक्शन को हमको ना बोलना पड़ेगा, चुनाव नहीं मनाव से साथ में रहना हमको सीखना होगा। तो तंत्र तो होगा, पर उसको दिशा दर्शन देने वाला गुरु लगता है। वो गुरु भक्ति पढ़ाने वाला नहीं चाहिए, वो गुरुडम वाला नहीं चाहिए। और ये सातत्य से लगता है, जब गुरु की छाया हट गई, दिशा दर्शन हट गया, नैतिक अधिकार हट गया, तो फिर समाज बिखरता हुआ भी हमने देखा है। तो वह मौका न आने के लिए एक तरफ जहां पर ये नैतिक आरोहण की बात है, ये गण सेवक के लिए नैतिक आरोहण लगातार दिशा दर्शन बताने की योग्यता, और दूसरे तरफ संगठन कृति भक्ति का समाज के लिए, ये दोनों को साथ साथ में चलना पड़ेगा। और समूह को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान मार्गी बनना पड़ेगा। केवल भक्ति मार्गी बन के चलता नहीं, भक्ति अपंग बनाती है कई बार। वो कृति भक्ति में परिवर्तित हुई तो विकास की ओर ले जाएगी, और कृति भक्ति के साथ में ज्ञान मार्ग जुड़ेगा तो फिर श्रेयस समाज की ओर उसके ये बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे। अब ये सघन क्षेत्र का एक बहुत सुंदर प्रयोग गढ़चिरोली जिले में मेंढा गांव में हुआ, शायद आप लोग जानते होंगे। ग्राम स्वराज्य का उत्कृष्ट नमूना वहां खड़ा हुआ। ग्रामदान उन्होंने विनोबा जी जाने के बाद में एक्सेप्ट किया। 100% लोगों ने ग्रामदान में भाग लिया, जो विनोबा के समय भी नहीं था। मोहन हीराबाई हीरालाल हमारे मित्र थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी उसमें खपा दी गण सेवक के रूप में। नेतृत्व नहीं किया, सहभागिता जगाई, ज्ञान मार्ग का वहां पे आरोहण करवाने में मदद की। अब वे नहीं रहे हैं, मोहन भाई नहीं रहे हैं। अब गांव में इतनी लीडरशिप सामूहिक खड़ी उतनी नहीं खड़ी हुई जो दिशा दर्शन कर सके, जो विजनरी की लेवल तक जा सके। तो अब वो गांव थम सा गया है। इस गांव में 400 के गांव में 400 बंदूकें खड़ी थी, इन्होंने सत्याग्रह किया था तब। इनको पूरे जंगल का अधिकार शासन को देना पड़ा था। वही गांव आज ठिठक सा गया है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए ज्ञान मार्ग साधक की आवश्यकता बहुत है। और आज ग्राम सभा को ग्रामदान का मिलने के बाद भी शासन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि कानून बना हुआ है। 15 साल लड़ना पड़ा कोर्ट में जाके, कोर्ट ने इनके तरफ से निर्णय दिया। आज भी उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में जो पॉलिटिकल बॉडी है वो आगे पीछे करती है, अधूरा वही किया हुआ है। इसलिए ये भी समझ में आया कि जहाँ पे लोक शक्ति के आधार पर ऐसे अच्छा संगठन खड़ा होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल चरित्र भी बदलता हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम भी ट्रस्टीशिप तक पहुँचे, लोकाभिमुख बने। इसे साथ में चलना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ओएसिस बन के रह जाएगा, एक छोटा सा क्षेत्र बन के रह जाएगा, आगे बढ़ भी नहीं पाएगा और उसका विस्तार भी नहीं हो पाएगा। तो ये ट्रस्टीशिप लीडरशिप में कैसे आए, क्या ये शक्य है? आज नहीं लगता है। पर व्यक्ति ट्रस्टीशिप के ऊपर तक पहुंच सकता है, हमने गांधी में देखा। अत्युच्च शिखर तक पहुंच सकता है, एक लैंप पोस्ट बन सकता है। क्या इसका कोई उदाहरण है? आज है जिसने समाज को भी परिवर्तन किया। जरा भूटान को देखिए, भूटान की समाज रचना को देखिए, भूटान के शासन को देखिए। वहां राजा है, ये ट्रस्टी किंग है, विश्वस्त है समाज का। जो वांगचुक परिवार है उसका चौथा राजा, उसने अपने सारे अधिकार नीचे तक दे दिए हैं। उस समाज में बौद्ध धर्म का अपना स्थान है जन साधारण में। इसलिए एक तरफ धर्म स्थापना है, दूसरी तरफ ये प्रो पीपल गवर्नेंस है।
ट्रस्टी राजा है, वो राजा को वे लोग पूछते हैं, यदि कोई उंगली बताए उनके फोटो की तरफ तो उनको सहन नहीं होता, लोगों को इतनी श्रद्धा उस पर है। तो यदि हमारा शासक ट्रस्टी की भूमिका में आ जाए तो ये आज के कलयुग में भी होता है, इसका उदाहरण है पर इक्का दुक्का। ये क्यूबा को देख लीजिए, क्यूबा ने भी वो मजल गाठी थी। उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम का ट्रस्टीशिप की ओर आरोहण करना भी ज़रूरी है, यदि इसको समाज के परिवर्तन में लाना हो तो। नहीं तो छोटे छोटे ओएसिस ही ज़्यादा से ज़्यादा बन के रह जाएंगे, और वो भी कब फिर टूट जाएंगे इसका भरोसा नहीं। अब आखिर में ये आध्यात्मिकता किसे कहें, है ना? एक होता है इथिक्स, दूसरी होती है नैतिकता जो समाज को छूती है। इथिक्स व्यक्ति को छूता है और आध्यात्मिकता व्यक्ति को ही ज़्यादा छूती है, समूह में कम आती है, पर आध्यात्मिकता दिशा दर्शन का होता है। इसलिए नैतिकता को दिशा दर्शन करने वाली आध्यात्मिकता है, इसलिए हम आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं। अब ये आध्यात्मिकता किसको कहें? वो ऐसा व्यक्ति जो अपने अंतर्मन की आवाज़ पे चलना जानता। अंतर्मन की आवाज़ यानी क्या? ये हमारे राइट ब्रेन का परसेप्शन है, मल्टीफैक्टोरियल परसेप्शन है, जो भावना का क्षेत्र है, जो इमोशंस का क्षेत्र है, जो रंग की भाषा जानता है, जो संगीत की भाषा जानता है ना? बुद्धि लेफ्ट ब्रेन है, ये लॉजिकल ब्रेन है, ये झगड़ती है, एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाती। पर बुद्धि जहाँ किंकर्तव्य मूड हो जाती है, सोच नहीं सकती, वहाँ पर मेरे अंतर्मन की आवाज़ देती है। कारण अंतर्मन मेरा पिंड है, वो ब्रह्मांड का जो पिंड मेरे जीवन में है, जो निसर्ग मेरे जीवन में है, जो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग करता है, वो मेरा राइट ब्रेन है। इसलिए मेरा अंतर्मन जब कहता है और कहता है तब मेरे मन में समाधान जागता है, कृतकृत्यता जागता है, प्रेम जागता है, सृजनशीलता आती है, आनंद की अनुभूति आती है, मैत्री जागती है और अंतिमता शांति आती है। तब मैंने जो भी कुछ किया वो निसर्ग से एक रूप होकर किया, इसीलिए वो आध्यात्मिक दिशा बताती है। तो मेरे अंतर मन की आवाज़ पर चलने वाला समूह जब खड़ा होगा या व्यक्ति खड़ा होगा तो वह उस आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंच सकेगा, और वह जो मार्ग बताएगा वो फिर नैतिकता ने मंजूर करना चाहिए, और फिर हम जिस तरह के संगठन की अपेक्षा करते हैं वो पाएंगे। हम कहाँ हैं? हम तो बिल्कुल पहले पैदान पे आज हैं। हम लोगों के अपने क्षेत्र में जैसे हमने स्वास्थ्य बीमा योजना की और उससे लोक संपर्क हुआ, और जब हम इस पे आए कि व्रतबद्धता से चलने वाला समूह ही आगे बढ़ सकेगा, तो हमको 3 कार्यक्रम मिले। एक मिला वस्त्र स्वावलंबन, कपास होता है हमारे यहाँ पे, कपास से पूनी बना के सूत काट कर कपड़ा बुनकर कपड़े को खुद ने पहनना, बाजार मुक्ति साधना। दूसरा वित्त स्वावलंबन, एक दूसरे की मदद से बचत गटों में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसा इकट्ठा कर कर एक दूसरे को आर्थिक मदद देकर, सामूहिक कोष बनाकर हमारी ज़रूरतें पूरी करना। पैसा कलयुग में लगता है, तो वित्त स्वावलंबन महिलाओं का बना, तो महिलाओं के हाथ में ताकत आई, और फिर उसमें से शराबबंदी भी निकली। तो महिलाओं को तो नैतिकता के सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, इसीलिए महिलाओं का संगठन ठीक मार्ग पे गया तो क्या हो सकता है, इसका उदाहरण हमने शराबबंदी में देखा। और तीसरा अन्न स्वावलंबन। अन्न स्वावलंबन इसीलिए कि हम निसर्ग से पूरक खेती नहीं करेंगे तब तक आज की क्या बीमारियां और क्या है ये हम सब जानते हैं। वो करेंगे तो फिर स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही, पर निसर्ग से पूरक जीवन जीना भी सीखेंगे, और निसर्ग से पूरक जीवन जिएंगे तो वो आध्यात्मिक जीवन होगा। गांधी ने अनटू दिस लास्ट किताब से पाया हुआ अंतिम बोध था कि किसान की जिंदगी ये सबसे मंगल जीवन जिंदगी है, कारण वो श्रम आधारित जीता है और परस्परावलंबन से जीता है, मैत्री के आधार पे जीता है, इसीलिए वो निसर्ग के अनुकूल जीता है। ये 3 कार्यक्रम मिले, ये हम हमारे हिसाब से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव हैं, आज के ये बोलने का ये विषय नहीं हो सकता, इसीलिए मैं यहाँ आके रुक जाता हूँ। इतना ही कह के
कि रचनात्मकता के माध्यम से गांव तक पहुंचने पर भी हम संगठन यदि बांध भी सके तो भी उसकी दिशा दर्शन के लिए हमको आध्यात्मिकता की खोज करनी होगी। और सामूहिकता में आध्यात्मिकता पाना ये टेढ़ी खीर है, पर वह परीक्षा हमको पास करनी होगी। साथ ही साथ में राजनीति का आध्यात्मिकरण उतना ही जरूरी अंग होगा, ये हमारे मन में हम ठान लें। मैं यहाँ रुकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद उल्लास जी, आपका संबोधन बहुत ही बढ़िया रहा। रूरल हेल्थ एश्योरेंस आपने जो होलिस्टिक अप्रोच बताया वो बहुत ही सराहनीय है। हर स्टेज पर आपके काम में आपने इंट्रोस्पेक्शन किया और उसके अनुसार आपने उसमें एडजस्टमेंट भी किया, प्रगति भी की। उसमें जो कमियां रही आपको दिखाई दी, उसको आपने उसके ऊपर उपचार किया। और आपने सही कहा कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज वर्शिप टू गॉड, जो विवेकानंद जी भी बार बार कहते थे कि हमारा धर्म बेसिकली वी शुड स्टार्ट सर्विंग द ह्यूमैनिटी एंड दैट इटसेल्फ इज अ वर्शिप टू गॉड। ये जो विवेकानंद जी ने बताया, टुकड़ो जी महाराज ने बताया, वो आपने आपके जीवन में उसका अनुसरण किया। और बाद में आपने बेसिकली आध्यात्मिकता तक ये सब चीज़ें आपने ये बहुत ही सराहनीय है, सबके लिए आदर्श है। जो भी लोग समाज कार्य में काम कर रहे हैं उनके लिए आपका आज का संबोधन बहुत ही प्रेरणादायी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर मेंबर्स, आपका प्रेम है मुझ पे। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर ग्रुप मेंबर्स टू हैव देयर क्वेश्चंस। Those who want to ask questions, please ask. Ullas ji will try to answer. Over to the group members. हेलो। हाँ बोलिएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग उल्लास जी। आई एम भगवदीश्वरन फ्रॉम कन्याकुमारी। जी। आपने जो अपना जिंदगी में जो एक्सपेरिमेंट किया है बहुत बढ़िया है, उसमें दूसरा राय नहीं है। लेकिन अभी का जो वातावरण में आपको जो चिंतन है इसको किस तरह क्या के ले जाएगा अभी गांव में, क्योंकि अभी का गांव है एंडली डिफरेंट है। ये अभी का गांव का जो वातावरण है पॉलिटिसाइज्ड, एकदम पॉलिटिसाइज्ड प्लस इकोनॉमिक ओरिएंटेड है। इस सिलसिला में आपको जो विचार है उसको ले जाने का क्या तरीका है, कैसा करेंगे? ऐसा है, कलयुग यानी लोभ का युग ना, तो कलयुग में भी सत्ययुगीन विचार के व्यक्ति होते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में यह आदर्श पालें, हम खुद को बदलें पहले, दुनिया तो बाद में जब बदलेगी तब बदलेगी। इतनी भूमिका तो रखी जा सकती है, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी पूरा नहीं बढ़ सकता हूँ, मेरी भी मर्यादाएं हैं, वो भी कमजोरी हैं, पर थोड़ा ना थोड़ा ए स्टेप इन राइट डायरेक्शन probably would be enough for my life even if I do not reach to the goal। यही भूमिका है। सामूहिकता का प्रयत्न करें, वो तो निरंतर शिक्षण का विषय है। सामूहिकता में परिवर्तन तो तभी आता है जब अन्याय की पराकाष्ठा समाज में होती है, तब फिर समूह करवट लेता है, वो भी आधी अधूरी करवट लेता है, पूरी नहीं लेता है। इसीलिए वो तो एक प्रोसेस है, लंबी है, उसमें काल का अपना स्थान है, परिस्थिति का अपना स्थान है, उसमें एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। व्यक्ति ने तो अपनी दिया जला के रखना है, अपने जीवन में उतारना है, और फिर ऊपर वाला चाहेगा तब समाज उसको मंजूर करेगा। उल्ला जी आपने बढ़िया बताया। अल्टीमेटली हम जो काम कर रहे हैं स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए कर रहे हैं जी। समाज बद्दी होगा। We should not worry about it. It's very good. The same principle Swami Vivekananda also said, that let us work at our individual level and then slowly and gradually the society will change. Over to other members, please. हेलो उल्लास। हाँ। ऐसा नहीं लगता क्या कि इफ गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन, एजुकेशन विथ हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड और जो गरीब लोग हैं
बड़े लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन छोटे बच्चे जो है उनके लिए गुड राशन एंड गुड फूड, take care of their nutrition so that the future generations are better physically and intelligence wise or brain performance wise. All these problems will be solved within next 20 years. ऐसा नहीं लगता क्या? And once financially they are stabilized, means they want better house, they work for their betterment, and once if they have got ethical education, तो याने म्हणजे ते वाम मार्गाला जाणार नाही ते लोक, बरोबर आहे. असं नाही वाटत का? ऐसा है, पुरानी गुरुकुल की पद्धति थी हाँ जिसमें 2 पार्ट थे गुरुकुल के. हाँ हाँ एक कहलाती थी विद्या स्नातक, हाँ ये आपकी डिग्री है, आप जो हाँ। स्किल पाते हो. दूसरा था व्रत स्नातक. हाँ व्रतबद्धता जब तक उस विद्यार्थी के जीवन में नहीं उतरे तब तक गुरुकुल की पद्धति का शिक्षण पूरा नहीं होता. और व्रतबद्धता यदि आनी हो तो गुरु भी तो व्रतबद्ध चाहिए ना. आज शासन व्रतबद्धता के साथ करेगा, इसका उदाहरण वो थोड़ा यहाँ दिखता है जहाँ मैंने कहा भूटान में. कारण वो जो राजा है ना वो व्रतबद्ध था और उसने उस तरह से योजनाएं लाई और लोगों के हाथ में ताकत दी. तो शासन ये कर लेगा, ये मेरे विचार से मृगजल होगा. अच्छा उल्लास जी नमस्ते. नमस्कार. मेरा नाम संजय बैनर्जी है, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ. जी. तो आपसे एक प्रश्न ये था कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तो जब उतार होती थी, जब आपकी जीवन में मतलब जो सफलता है वो नहीं आती थी, उस समय आपकी मन की अवस्था कैसे होती थी और आप उससे कैसे खुद को निकाल करके फिर आगे बढ़ते थे, इसके बारे में अगर कुछ बताएं तो अच्छा लगेगा. नमस्कार. आदमी गलती से ही सीखता है, इसीलिए मैंने क्या गलती की और उतार क्यों आए, इसका यदि मैं विवेचन करूं खुद के साथ और अंतर्मन को पूछूं और उसका कारण यदि मिले तो फिर हिम्मत बनती है कि वो गलती वापस नहीं करूंगा. समय आता है जबकि आपके मन में काफ़ी ये आपने ऐसा है ना, आप कुछ काम करने जाते हैं और कर्माशक्ति होती है, वो फल छोड़ने की तैयारी नहीं होती और फल नहीं मिलता तो दुखी होते हैं. यदि हम फलाशक्ति छोड़ना सीख जाएं तो शायद हमारी गलती से हम आगे सीख सकेंगे. मैंने वो पाया है ऐसा नहीं है, पर यह मैं थोड़ा सा विनोबा साहित्य के आधार से सीखा हूँ. आप प्रणाम. जीवन यात्रा में बिल्कुल नए नए आयाम देखने और उसके पश्चात निष्कर्षों पर पहुंचना अपने में एक बहुत योगी का कार्य होता है और आपको बहुत बहुत साधुवाद इस तरह की जीवन यात्रा के लिए. प्रश्न तो नहीं, पर मैं व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव करता हूँ कि समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो गाँव की वास्तविकताएं बड़ी तेजी से बदल रही हैं और अगर आप स्थितियों को देखें तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पर मैंने 2 चीज़ें अनुभव की हैं कि जहाँ जहाँ पर भी राजकीय सहायता बढ़ी है, खासकर से भोजन के लिए, वहाँ पर खेती का कहीं ना कहीं पर ह्रास हुआ है. खेती का ह्रास हुआ है, मतलब ह्रास हुआ है. और स्वास्थ्य के मामले में तो मुझे ये लगता है कि आज के समय में अगर आप एक जनरेशन पहले देखें और आज देखें तो सरकार की तरफ से सुविधाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं. भले ही वो आयुष्मान योजना बोले या दूसरी तरह की बातें बोले, उससे फर्क पड़ा है, बहुत तेज़ी से फर्क पड़ा है. और द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल हेल्प हैज़ ऑलवेज बिन देयर, इससे काफ़ी महसूस हुआ है. इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर आप बार्टर सिस्टम से इसकी बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उसकी आज की डेट में प्रासंगिकता कितनी है ये पता नहीं, ये मुझे नहीं लगता. और जहाँ तक रही बात, कुछ चीज़ें तो ये पब्लिक गुड्स हैं जिसे कहते हैं, जैसे शिक्षा के बारे में आपने बताया पब्लिक गुड है, स्वास्थ्य इज ऑल्सो ए पब्लिक गुड.
जी जिसमें व्यक्तिगत के बजाय राज्य को अपनी तरफ से जितना अधिक से अधिक अच्छा हो वो करना चाहिए। उसमें हम लोगों का केवल एक ही चीज जो तीसरे चरण में आपने अपने संबोधन में कहा कि अगर आप अनासक्ति और व्यक्तिगत शुचिता दो चीजों पर फोकस समाज कर सके, जी अनासक्ति और व्यक्तिगत शुचिता, सोचने का जीने का ढंग, तो बाकी चीजें तो सोसाइटी अपने आप टेक केयर करेगी, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मुझे लगा कि जस्ट अपने जो मैं महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, बता देना चाहिए। प्रणाम, पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा वक्तव्य था। नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। पहली चीज़ आपकी केवल बता दूं कि करुणा से प्रेरणा मिलती है कृति की। करुणा चुप नहीं रहने देती है, और करुणा इस हद तक जाती है कि कुछ न कुछ कर मिटने की भी तैयारी करवाती है। तो करुणा का मोड़ किस तरफ हो? यदि करुणा चैरिटी की ओर चले जाए, केवल सेवा तक ही सीमित रह जाए, तो सेवा पाने वाले को पंगु बनाती है। वही हुआ, आप जो खाने अनाज के बारे में बात कर रहे थे या स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मुफ्त मिलता है इसलिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, कारण ज़रूरत भी है। पर यदि आपकी करुणा उसको स्वावलंबन की ओर ले जाए, स्वावलंबन ये एम्पावरमेंट का पहला कदम है, तो फिर वो करुणा का योग्य दिशा में, परिवर्तन की दिशा में उपयोग होता है। तो मेरा केवल उसमें इतना ही कहना है कि जो भी हम इसमें करें उसमें चैरिटी है, तारीफ होती है, बहुत प्रेस्टीज मिलती है, लोग थपथपाते हैं आपको, परंतु यदि नीचे के व्यक्ति का एम्पावरमेंट उसमें नहीं हो, उसके साथ में मैत्री ना बने, तब तक हमारा समाज परिवर्तन का उद्देश्य उसमें से नहीं होता। आपने कहना वो ठीक है कि शुचिता और वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो होनी ही होगी, नहीं तो हमको बोलने का अधिकार ही नहीं। और वो भी ये कहना होगा कि पूरा साकल्य तो कोई पा नहीं पाता, आधा अधूरा ही पाता है। इसीलिए ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ कि वो कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर पाता हूँ, इसका भान यदि हो तो भी मेरे विचार से वो रास्ता बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद जाजू जी, आपने सही कहा, चैरिटी। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद आल्सो नेवर बिलीव्ड इन चैरिटी. He always used to say that don't give a fish to the poor people. Instead of that, tell him how to catch the fish. That will solve the problem. And that is what you are also trying to follow it. You are trying to empower the people, and that is what you are talking about, the assurance. Rural health assurance will come when you empower the individual farmers or the local community. That is very, very important. It was a wonderful presentation. Thanks a lot. Please do come to Kanyakumari to see our work whenever you are coming to the south. Come with your family. We have a very big campus. We can accommodate about 1,000 people. After listening to you, we felt that 100,000 Jazus are required to change this landscape of India. Lot of problems are there. But as you rightly said, let us start with one single step. Then others will join gradually. मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया और आपसे मैं संवाद साध सका। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।